बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब आप सबको सलाम कहता हूँ। ईद के रोज़ जब सब एक दूसरे को खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं, ईद मुबारक कह रहे होते हैं, उस लम्हे उस घड़ी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे एक नौजवान, बड़े खूबसूरत नौजवान पाकिस्तानी मजदूर शलवार कमीज़ की वजह से नज़र ये आ रहा था उस नस्ल परस्त, उस फाशिस्ट को कि ये गैर मुल्की हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये मुसलमान हैं, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या हन्नास भरा था कि उस फाशिस्ट ने टैक्सी में सवार था, अपना हाथ निकाला, रिवाल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। और हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे खड़े हैं पास, इसी तरह उसके सर में हसास तरीन हिस्से कान पट्टी पर गोली मार दी गई। अब सुनते हैं मेरे साथ हैं हमारे पाकिस्तानी साथी। अस्सलाम वालेकुम। नौजवान क्या हुआ? पंजाबी च बात करना चाहते हो, आसान है या उर्दू किस तरह? नमाज पढ़ी कल ईद के दिन, नमाज पढ़ी आया तो दोस्त मिलने पे तो ईद मिले पे खुश हो के एक दूसरे को पता नहीं कौन है कौन नहीं, अल्लाह जानता है। टैक्सी जो है, टैक्सी का आई है, टैक्सी आई है लंघदी होली लंघदी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ? ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੱਲ ਖੇਲ ਲਿਆ ਨਾ ਕੀ ਅਸਰ ਖੇਲ ਲੱਗੇ, ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਜਨੀਤ ਜੈਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਾਡਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रमजान रखे होंगे, रोजे रखे होंगे, रोजे रखे हैं अलहमदुलिल्लाह, रोजे रखे हैं। थोड़ा सा पीछे। अच्छा एनजीओ है ना कि ये आया है, ठाठा की आवाज आई है, टक टक की आवाज आई। अच्छा गोलियां चलानियां शुरू कर दी ने, लंघदे गोलियां चलाइयां ने। अच्छा कोई रुक टैक्सी वाला आया है, स्पीड बड़ी स्लो की थी, हाथ बाहर काट के गोलियां चलानियां। फिर मुंडे कहते ने की हो रहा है, मैं क्या पता नहीं क्या है, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਈ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਅਸਾਸ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਖੌਫ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਡਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਜਕੜੇ ਹੈ, ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਮੁਲਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕਵੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਵੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਵਤਨ ਤੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ, ਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼। ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ 18 'ਚ ਛੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ 19 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਟਣਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸ਼ਾ 'ਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੇ।
ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। इधर में चलो कि आज थोड़ा ज्यादा अच्छा ते मलक अली रियाज नाम दस्या तुसी जी सर। अच्छा ते तुसी की समझदे हो कि कोई तुहाडी ओदी अदावत सी, कोई मसला सी, पहले कोई इख्तलाफ सी, ਨਹੀਂ ਸਰ, कदे किधरे ਇਹਦਾ ਕੰਮ एफ जिहा वकूआ पेश ਕੰਮ आया? ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਦੇਸ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। अच्छा जिस वेले तुहानू गोली लग गई है ਜੀ ਜੀ फिर ये खालिस्तान यानी कि नस्ल परस्त सी, फाशिस्ट सी, ਬੇਸ਼ੱਕ। यानी कि ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਈਦ ਫਾਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਨਰ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ, ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜੈਲਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਸਪੀਟਲ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਲੈ ਗਈ ਕਾਤੇ ਖਾਕੀ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਹੋਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ, ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਗਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਕਾਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ तमाम ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। बात ये है कि नस्ल परस्ती और मुतस्सबपन एक ऐसी नफरत और गुस्से का नाम है जिसमें वो नस्ल परस्त, वो फाशिस्ट अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। उस पागल ने, उस अंधे ने, उस फाशिस्ट ने कल ईद के रोज़ हमारे बच्चों को देखा कि बने हुए सवरे हुए शहजादों की तरह आपने वतन की ड्रेसिंग करके खड़े हैं, गप्पे लगा रहे हैं, तो उस बदमाश ने, उस गुंडे ने गोली मार दी, रिवाल्वर निकाला और गोली मार दी। इन बच्चों से जब मैं ये पूछता हूँ कि मेरे वतन की इज्जत का महवर, मेरा सफारतखाना, मेरे वतन से आए हुए सफ़ीर यहाँ मौजूद है, किसी एक को भी कभी ये उम्मीद क्यों नहीं पैदा हुई कि मैं अपने सफ़ीर साहब को फ़ोन करूँ, अपने सफारतखाने को? मैं तो फीस बिलिल्ला रज़ा कराना, अल्लाह की रज़ा के लिए 1 सेंट 1 पाई ना है, ना एक साइकिल का मालिक हूँ, उसके बावजूद ये सारे के सारे बच्चे लहू में डूबे हुए, जब भी किसी मुसीबत में खेत से खलियान तक और खेत खलियान से लेकर गोली छुरे चाकू तक जब भी कोई ज़ख्मी होता है तो मैं उसकी आस में, उस तकलीफ़ और मुसीबत की घड़ी में उसे पाकिस्तान कम्युनिटी याद आती है, मैं याद आता हूँ। अल्लाह का सौ शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे गरीबों की, मस्कीनों की, लहू में डूबे हुए बच्चों की आस और उम्मीद बनाया। अब हदायत ये करता हूँ जिस तरह मलिक अली रियाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक है, अल्लाह ताला जल्द आपको सेहत अता फरमाए। इनको इसलिए रोका, आप में से भी हदायत करता हूँ मेरे बच्चों, बड़ी तवज्जो से सुन लो कि जब आपके पास पेपर ना हो, इस तरह के किसी वाक़े को
नज़र अंदाज नहीं करना। छोटा है या बड़ा है, फ़ोन की बेल, छोटा है या बड़ा है, फौरी तौर पर मुझे आगाह कर सके। मुमकिन है कि मैं उस वक्त आपकी कोई मदद ना कर सकूं, क्योंकि वो इंसान जो है ना, वो एक कदम तो पाँव उठा सकता है, दूसरा उठाएगा तो मुंह बल गिर जाएगा। कल मलक साहब ने, रियाज साहब ने, कल एहसान साहब ने, बड़े साथियों ने फ़ोन किया, मैं नहीं पहुंच सका क्योंकि ईद थी और सरकारी मस्जिद में मैं उस वक्त नमाज ईद अदा कर रहा था और मेरे ये साथी उस वक्त इनको बड़ी मुसीबत थी, लेकिन मैं अकेला था, साइकिल का मालिक नहीं, अकेला था। और उस हालत में फिर मैंने इनको एडवाइस किया हॉस्पिटल के, और इस बात से मैंने रोका 2 दफ़ा। पुलिस आई, मैंने कहा आपने पुलिस स्टेशन नहीं जाना, बयान रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना कि जब आपके पास पेपर नहीं तो फिर पुलिस का ये कायदा है, कानून है, आपको उन्होंने गिरफ्तार करना था। अब हम वकील जोतोस दिमित्री जो है, जिसने हमारे साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा इक़दाम किए हैं, बहुत ही ज़्यादा केसेस में हमारी मदद की है, और उसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला कानूनी चाराजोई करेंगे, मुजरमान को, गोली मारने वाले उस बदमाश को भी पकड़ेंगे और आपके पेपर्स भी बनवाएंगे, क्योंकि ये कानून है, ये मेरा नहीं मामला, ये यूनानी कानून है। देखें ना, वो यूनानी कानून है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, और यूनान की अदलिया, अदालत, निज़ाम अदल आपको हक देता है कि आप पेपर नहीं, आप मजलूम हैं, आपको एक फासिस्ट ने, गुंडे ने, एक बदमाश ने गोली मार दी, तो आप अदालत में कैसे खड़े हो सकते हैं? इसलिए कानून कहता है कि फिर आपको पेपर्स मिलेंगे और फिर आप लीगल होंगे और फिर आप अदालत में अपना हक और इंसाफ ले सकेंगे। और उसके लिए कानून को अमल में लाने के लिए फिर मैं इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला कोशिश करूँगा, कावश करूँगा फीस बिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। और आप मेरी कौम के, मेरे बच्चे ये सुन लें कि बेशक मैं उसी वक्त आप तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि एक फ़र्द एक जगह हो सकता है, 2 जगह पर नहीं हो सकता, 3 जगह पर नहीं हो सकता, लेकिन आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो थोड़ी देर ठहर के मैं दिल से, पूरे अपनी सोचों से आपके लिए पूरा मुखलिस हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए आपके लिए काम करता हूँ। अब करेंगे हम ये कि कल वकील से टाइम तय पा गया है, वकील आयो पंदली मोना पुलिस स्टेशन है, 3 सितंबर 113 पर ये वाकया, ये हादसा पेश आया है, और गवाहान इकट्ठे करेंगे, वीडियोस इकट्ठे करेंगे। वो टैक्सी का नंबर तो इन्होंने नहीं देखा, लेकिन हम टैक्सी की सारी तफसीलात इकट्ठी करेंगे और तमाम तहकीकात करने के बाद इंशाल्लाह मुजरम तक पहुंचना नंबर 1। दूसरा नंबर ये है मलिक साहब, इसलिए बड़ा ज़रूरी है, बेशुमार नौजवान जैसे आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बात को बाहर ही नहीं निकालते, बात का जिक्र ही नहीं करते, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हो जाता है कि एक तो मुजरम बचा रहता है, दूसरा आप खौफ से नहीं निकल सकते, तीसरा आपके लीगल पेपर नहीं बन सकते, और चौथा एक पैगाम नहीं जा सकता सब तक कि भाई जब मुझ पर कोई बदमाश हमला करे तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, अपना हक ले सकता हूं, मेरी कम्युनिटी मौजूद है, कोई अदारा ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा होगा फीस बिलिल्लाह रजा कराना और मुझे मेरा हक लेके देगा। ये 4 बुनियादी बातें हैं और आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप इस वक्त जख्मी होने के बावजूद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े मुफीद हैं, क्योंकि आपने उनको कहा कि मैं खड़ा हूँ और हर हकदार ने खड़े होना है, ये तब हक मिलता है। हमारे नबी भी कहते हैं कि अपने, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही अपना हक ना किसी को खाने दो। हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि सच के लिए खड़े होना चाहिए। ऐसा ही, भागना नहीं चाहिए, सच से नहीं भागना चाहिए, उस पर खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही, नहीं खड़े होंगे तो फिर आज इंसान हमें बुज़दिल समझेगा, ऐसा ही, और बुज़दिल की और कोई जिंदगी नहीं है। मर्द भी खुदा ने पैदा किया हो और फिर बंदा बुज़दिल हो तो ये तो कोई बात नहीं ना। ऐसा भी गलत मलिक साहब आप मेरे शहजादे देख लें कि पिछले तकरीबन 2011-12 से यहाँ कृषि अवगी और नस्ल परस्त जमातें तकरीबन 1000 के करीब वाक़यात हुए, 1000, और हर जगह वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। लेकिन मैं दीवाना हूँ, पागल हूँ? नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा मुकद्दर नसीब मेरा खुदा बनाता है, मेरी ज़िंदगी मौत मेरे खुदा के कब्ज़ा कुदरत में है। वरना मैं कहूँ जनाब मलिक अली रियाज को गोली लगी है तो मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूँ यार? मुझे तो छुप जाना चाहिए, साइड पे चले जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने भी साइड पे नहीं होना और आपको भी अकेले नहीं छोड़ना ताकि आपका हक लिया जा सके। ये बात है।
अच्छा जी, आप अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, ईद की खुशियां मनाएं, ईद मुबारक आप सबको। लेकिन आपने किसी गम में डूबे हुए भाई की मदद करने से पाँव खींचे ना। और बराए मेहरबानी सुन लीजिए कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसकी फ़ौरन इतला करें, फ़ौरन रिपोर्ट करें। और इसमें सबसे बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि आपका अपना इदारा पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान मौजूद है, उसमें आएँ फ़ीस बिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए। आपकी दुआओं आपकी मोहब्बतों से ही मैं काम करता हूँ, यही मेरा असबाब राह है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो एक 25 साल का किरदार है उसके तहत आपकी इज्जत, आपकी खुशी, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी खुशी है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा नफ़ा है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के रखे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।